व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। फिर हुई बेइज्जती, ब्रिगेड 313 का नाम सुनते ही लड़खड़ाई पाकिस्तानी नेता की जुबान। हिथरो एयरपोर्ट पर अप्रवासी शख्स ने जमकर किया हंगामा, रनवे पर लगाई दौड़। अमेरिका में भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर किया निर्वासित, अपराधियों जैसा सलूक किए जाने का वीडियो आया सामने। और अब खबरें विस्तार के साथ। दरअसल पाकिस्तानी नेता की जुबान फिर से लड़खड़ाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने एक बार फिर अपने देश की पोल खोल दी। रहमान ने स्वीकार किया कि उनके देश का अतीत आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को बेइज्जत करने के लिए किसी बाहरी शख्स की कोई जरूरत ही नहीं रही। इसके नेता ही इस काम के लिए काफी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक कई बार अपने ही मुल्क को शर्मसार कर चुके हैं। अब इस कड़ी में एक नाम और शामिल हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उपाध्यक्ष शेरी रहमान का भी जुड़ चुका है। शेरी रहमान ने खुद ये बात मानी है कि पाकिस्तान का अतीत आतंकवाद से जुड़ा रहा है। स्काई न्यूज की मशहूर पत्रकार याल्दा हकीम के तीखो सवालों ने पाकिस्तान की नेता शेरी रहमान को पस्त कर दिया। लाइव शो के दौरान याल्दा हकीम ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी। याल्दा हकीम ने न केवल पाकिस्तान नेता की बातों को तर्कों के साथ काटा, बल्कि ठोस सबूतों और बयानों के आधार पर शेरी रहमान को उन्हीं के जाल में उलझा दिया। याल्दा हकीम ने अपने सवाल में पीपल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने कहा कि सीनियर इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रिगेड 313 पाकिस्तान से संचालित होता है। ये संगठन कई आतंकवादी गुटों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लश्कर तहरीर और अल जिहाद जैसे आतंकी संगठन भी शामिल। इस पर रहमान कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई, बल्कि सवाल की दिशा बदलने की कोशिश करने लगी। शेरी रहमान ने कहा कि मैं नहीं जानती ये किसने कहा है। A senior intelligence analyst at TRAC, a terrorism research and analysis consortium, told us at Sky News that Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami, Yalda, Ms. Hakim, I don't know who told you this, but this is, I can produce any number of pages saying all this. Perhaps we should also produce a fact sheet and more than a fact sheet, a digital dossier. Am I asking you, am I going to war every time there is an attack in India? There are 100 insurgencies running in India. Are we responsible for what goes on there? That's what this amounts to. But I think what it amounts to is a terrorist attack in Kashmir. What I'm trying, I mean, look at Jaish Mohammed. You answer one. No, but I asked the question, Senator Rahman, because this is you being accountable for what is happening inside Pakistan. In a statement issued on the 7th of May following the Indian airstrikes, Jaish Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed there. Children are not leaders. But the fact that Bahawalpur is known to be a hub for terrorism. Maybe you should visit, because a UN team has visited. They have found hospitals there and mosques and rubble. I'm happy to take you there myself. Not that this is what I do, but maybe no. Collective punishment is what you're talking about, right? I'm not, but I'm wanting to know what Kulbhushan Yadav's family, who's a serving military officer. But I want to know what brigade. I want to know what Brigade 313 is, and why international analysts are saying that's Al Qaeda in Pakistan. Most of the international analysts you're quoting are strongly aligned with India's narrative. They tell only India's story, and this is our deficit that we haven't been able to tell this story, right? Muritka and Bahawalpur are not centers of terrorism. These are proscribed now. These are all banned organizations, and at least 2,000 of their members have been arrested. And let me also give you the facts. Here's the facts. I'd like you to check this. I mean, because I appreciate that you're wanting to dabble in facts. Absolutely. I mean, if I look at where how many? Okay. Pakistan has filed 2,645 terrorism financing cases. This is why we're in the white list, not in the grey.
of But why were you in the grey list? Arrested. Third, why were you in the grey list? 2007. Okay, here's where we want. So who is in the grey list? Countries that sponsor terrorism. Be very clear. And the Financial Action Task Force International Terrorism Financing Watch List put you there because of the fact that Sajid Mir, for example, the Mumbai attacker plotter, was roaming around. Yes, we are also facing down. We did face down terrorists. We continue to do so. But the point is, there seems to be some... India produces no proof and no one's asking them that. India multiple times... investigation India into this multiple Let me talk to you too. Formal engagement occurred in 2008 after the Mumbai attacks. Since Formal engagement, 2013, they sent an investigation team to why are we India. not talking about Samjhauta Express when 40... Baluch... No, Samjhauta... You have a parallel chronology. You are free to talk about the terror attacks. But the fact is that we are not going to war or bombing. Say, there's a military officer arrested in Balochistan, serving Indian military officer. Have you heard the tapes of what he's saying? No. It's not. I'm aware serving of the military officer Liberation Army and yes, with BLA and Majid Brigade. So why isn't India on a grey list? This is our failing that we haven't bothered. Now we will try. I mean, the fact that Sajid Mir was roaming around freely around Pakistan. He was the Mumbai plotter. And it wasn't until his arrest were you not taken off the white list. The grey list. We were taken off the grey list for the reason we provided forensic evidence. I have chapter and forensic verse on what India has done in Balochistan. Why was Pakistan? We just had a BLA attack, and here we are talking about Pakistan. But up until 2022, Pakistan is a changed country. It is a changed country now. Telling me are fighting terrorism. 2 years ago, you were taken off. 2 years ago, talking about the past. But because India has now become the country fomenting terror. It's not the 80s. It's not the 80s. It's not the 90s. In 2022, you were on the grey list. So, in 2022, Sajid Mir, the guy who plotted the Mumbai attacks, was suddenly presented after being told that he was... But that is the relationship between the ISI and terror organizations. I take all your points. I mean, you're citing a long history of engaging with terrorism one way or the other. Okay, either fighting it. But we have grown up now fighting... not conventional wars anymore. This is the first one I've encountered after a long time. I grew up between the two. So where are we taking this constant sniping about what Pakistan did in its past, meaning that it's okay, we reward India for bombing innocent people in one country, right? Raising the escalatory spiral. We reward India by saying, oh, Pakistan, you used to do that. You can't ever change, you can't be another country because we're going to keep talking about what you did. So Pakistan has completely cleaned its record, the tens of thousands of terrorists that existed in the Pakistan is fighting very hard to do that. Pakistan is fighting very hard to do that. We've had a bruising encounter with Afghanistan. 44 NATO countries plus the United States could not get rid of most of the terrorists that... Because Pakistan was providing sanctuary. Absolutely not. I was ambassador. Osama bin Laden was found in Pakistan near military headquarters. We provided... Why was the ISI chief in Kabul the day of the Taliban takeover? Celebrating the takeover of Afghanistan. He's not particularly... He's not in a good place. You're not speaking to me even about the last 2 years when my government has come and gone. We've been in a coalition government. Pakistan is a changing place and we are trying very hard. But we have a revolving door with Afghanistan. In 24 months since then, Pakistan has even earlier, it's countries don't turn up. But we're not talking about what India has done bizarrely, because here's this country holding entire region hostage. You can't bomb a nuclear country and say, well, I can't furnish proof. Whatever goes wrong in my country, you're responsible for it. That's just not possible. And that's not going to lead to anything but war. Well, we hope there's no more escalation. We hope so. But hope's not a plan. So we hope there's a plan as well. Senator Rahman, really good to talk to you. Thank you so much. और अब अगली खबर,
हिथ्रो एयरपोर्ट पर अप्रवासी शख्स ने जमकर किया हंगामा, रनवे पर लगाई दौड़। हिथ्रो एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट पर एक अप्रवासी शख्स ने जमकर हंगामा किया और रनवे पर भागता हुआ नजर आया। ब्रिटेन से भारत भेजे जा रहे एक अप्रवासी शख्स ने हिथ्रो एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। शख्स ने खुद को छुड़ा लिया और हिथ्रो हवाई अड्डे के रनवे पर भागता हुआ नजर आया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामला रविवार का है। एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 के रनवे पर हुई इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिथ्रो एयरपोर्ट पर अप्रवासी शख्स ने काफी देर तक दौड़ लगाई, लेकिन अंत में सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार शख्स को मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। यह घटना तब सामने आई जब इसे एक प्लान स्पॉटर ने कैद किया और यूट्यूब चैनल बिग जेट टीवी पर पोस्ट किया। हिथ्रो एयरपोर्ट पर हुई इस तरह की घटना से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हवाई अड्डे के रनवे पर ऐसे कौन भाग सकता है। लगातार विमानों के उड़ान भरने और उतरने के कारण ये व्यक्ति यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। 220, no doubt operating. Oh, what's he doing? What's going on here? Why would there be people running across the? What's this all about? That is not right, mate. That geezer's running from someone. They are chasing him. What are you doing, mate? Get on the floor, son. Give yourself up. Mate. Mate, what is going on? Mate, isn't there anyone fit enough to take him down? Mate, they're going to have to stop the operations, man. They're going to have to stop aircraft moving. He's running straight towards... Here we go, someone in a van, here we go, someone in a van. Got him. They got him. What the hell was that all about, mate? और अब अगली खबर। अमेरिका में भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर किया निर्वासित, अपराधियों जैसा सलूक किए जाने का वीडियो आया सामने। न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर अधिकारियों द्वारा एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर जमीन पर लिटाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर निर्वासित किए जाने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में छात्र को जमीन पर लिटा हुआ दिखाया गया, जबकि कम से कम 4 अधिकारी उसे पकड़कर रखे हुए हैं, जिनमें से 2 ने अपने घुटने उसकी पीठ पर रखे हुए हैं। उन्होंने छात्र के पैर और हाथ बांध दिए थे। वीडियो में दिख रहा है कि छात्र रो रहा है। प्रत्यक्षदर्शी और भारतीय अमेरिकी उद्यमी कृणाल जैन द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस अधिकारी भारतीय छात्र के साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैन ने कहा कि पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। वो हरियाणवी भाषा में बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मैं वहां गया और एक पुलिस अधिकारी से पूछा कि क्या मैं उनकी बात समझने में उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। और अब अगली खबर। धारावी पुनर्विकास परियोजना के सीईओ SVR श्रीनिवासन का बयान, स्लम फ्री मुंबई से शुरू होकर स्लम फ्री भारत की ओर कदम।
धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी SVR श्रीनिवास ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य स्लम फ्री मुंबई की परिकल्पना को साकार करना है, जिससे आगे चलकर स्लम फ्री महाराष्ट्र और फिर स्लम फ्री भारत की दिशा में भी प्रगति हो सके। उन्होंने कहा यह परियोजना मुंबई के पुनर्विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मूल उद्देश्य है सबके लिए आवास और कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से बाहर न रहे। यह अब तक की सबसे समावेशी झुग्गी पुनर्निवास परियोजना है जो भारत में कभी चलाई गई है। People will be rehabilitated in this project. What do you say? So the vision is slum-free Mumbai. That is the broader vision, and through that to become slum-free Maharashtra. And this is a project of importance and highly central to the redevelopment of Mumbai. So it is also a step towards slum-free India. So that is a vision. And your question is regarding also what is the rehabilitation plan? The plan is, I will talk about the motto of this project. The motto is housing for all. So housing for all is the motto. Nobody should be left out in the process as far as housing is concerned. So it is the most inclusive SRA project, slum rehabilitation project, ever undertaken in India. And of course, it is, as I repeatedly say, it is the brownest of the brownfield projects and the world's largest urban renewal project with the tremendous complexities. And the idea is to ensure that everybody gets a house, and secondly to ensure that the livelihoods are protected, and third and finally to ensure that everybody is onboarded in the process, because we believe the goal is important, of course, but the process is equally important or even more important. So to bring everybody onto the same page as far as possible and to finish the project on time. So this is the overall sum and substance of the project. और अब अगली खबर, ऑस्ट्रियाई शहर ग्राज के स्कूल में गोलीबारी, 8 लोगों के मारे जाने की खबर, शूटर भी मारा गया। ऑस्ट्रिया में बड़ी घटना हुई है। यहाँ एक स्कूल में फायरिंग की बात कही जा रही है। इस दौरान कम से कम 8 लोगों की हत्या की बात कही जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को ऑस्ट्रिया के शहर ग्रास के एक स्कूल में 8 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक स्कूल से गोलियों की आवाज आने के बाद सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात कर दिया गया। आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि कई लोगों की मौत हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए। किसी के घायल होने या अपराधी के बारे में भी तत्काल कोई जानकारी नहीं है। ग्रास के मेयर LK कहर ने बताया कि मृतकों में शूटर भी शामिल है। सुबह 10 बजे कॉल के बाद BORG हाई स्कूल में विशेष बल भेजे गए। सुबह 11:30 बजे पुलिस ने सोशल नेटवर्क X पर लिखा कि स्कूल को खाली करा दिया गया है और सभी को सुरक्षित मीटिंग पॉइंट पर ले जाया गया है। उन्होंने लिखा कि स्थिति काबू में है और अब कोई खतरा नहीं है। ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्रास देश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ की आबादी लगभग 3 लाख है। और अब अगली खबर, दंगों के बहाने प्रवासियों पर फिर बरसे ट्रंप, कहा अवैध लोगों को बाहर कर जल्द आजाद होगा लॉस एंजलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासन नीति के खिलाफ कैलिफोर्निया प्रांत में जारी विरोध प्रदर्शन पुलिस की सख्ती के बाद शनिवार को दंगे में तब्दील हो गया। एक हिरासत केंद्र के पास मौजूद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे चलाए और पथराव किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों में आसपास की कई इमारतों व वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही लॉस एंजलिस में व्यवस्था बहाल की जाएगी और उसे आजाद किया जाएगा। ट्रंप ने इस बाबत गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को लॉस एंजलिस को प्रवासियों के आक्रमण से मुक्त कराने और दंगों को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लॉस एंजलिस की स्थिति को लेकर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि एक महान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस पर अवैध विदेशियों और अपराधियों ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया है। अब हिंसक विद्रोही भीड़ हमारे संघीय एजेंटों पर भी हमला कर रही है और हमारे निर्वासन अभियान को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अराजक दंगे हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं। और अब अगली खबर, रूस ने 2 यूक्रेनी शहर पर किया ड्रोन और मिसाइल हमला, 2 लोगों की मौत और 13 घायल।
रूस ने मंगलवार सुबह यूक्रेन के 2 शहरों ओडेसा और कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 13 अन्य घायल हुए। ताजा हमले रूस द्वारा यूक्रेन पर लगभग 500 ड्रोन दागे जाने के कुछ घंटों बाद हुए। यूक्रेन और पश्चिमी अधिकारी आशंका जता रहे कि 1 जून को रूसी हवाई ठिकानों पर यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमले के बाद रूस जवाबी कार्रवाई कर रहा है। क्षेत्रीय गवर्नर ओले किपर के अनुसार ताजा हमला दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा में हुआ। इस हमले में प्रसूति अस्पताल और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि रूसी हमले में शहर में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। दूसरा ड्रोन हमला यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ। पत्रकारों ने घंटों तक शहर के चारों ओर विस्फोट और ड्रोन की गड़बड़ाहट सुनी। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टो ने बताया कि राजधानी पर हुए हमले में 4 लोग घायल हो गए। हमलों के दौरान कीव में कई जगहों पर धुआं उठता दिखा। लोग डर के कारण मेट्रो स्टेशनों में जाकर छिप गए। और अब अगली खबर। तो पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेगा भारत, एस जयशंकर ने यूरोप से दी पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तानी सेना को भी घुटनों पर ला लिया। अब इस ऑपरेशन के करीब 1 महीने बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप की यात्रा पर गए हैं। या बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो हम पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उनको भारत में भेज रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अप्रैल महीने में की गई बर्बर हरकतों को नहीं रोकते हैं तो उन्हें भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। जयशंकर ने आगे कहा कि जवाबी कार्रवाई आतंकवादी संगठनों और उनके नेतृत्व के खिलाफ की जाएगी। जयशंकर ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान में अंदर के क्षेत्र में है तो हम पाकिस्तान में अंदर तक जाएंगे। और अब अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान, अपने रक्षा बजट में कर डाली इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। गौरतलब है कि भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में उसका रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना ये दर्शाता है कि वो भारत की ताकत को भलीभांति जान गया है और उसे लगता है कि भारत के सामने टिके रहने के लिए उसे रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है। और अब अगली खबर। सोनम ही है राजा रघुवंशी की हत्याकांड की मास्टरमाइंड। 4 आरोपियों ने जुर्म कबूल लिया है और इंदौर पुलिस ने किया इसका खुलासा। दरअसल राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। 4 आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। सोनम और राजा रघुवंशी का मामला देश भर में चर्चा में है। इस बीच इंदौर पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ही राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। हत्या करते वक्त सोनम आरोपियों के साथ मौजूद थी। इंदौर क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम चंद यादव ने कहा कि इंदौर में 4 आरोपियों ने जुर्म कबूला है। इस मामले में खुलासा हुआ कि राजा पर पहला हमला ने किया था और फिर शव को खुआई में फेंक दिया गया। लोकल से ही हथियार को खरीदा गया था। राज की पहले से इस घटनाक्रम को लेकर प्लानिंग थी और उसने ही इन तीनों आरोपियों को तैयार किया था। सोनम समेत 4 के घटना के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल आरोपियों ने नष्ट कर दिए थे। बाकी तकनीकी जानकारी शिलोंग पुलिस के पास है। फिशाल ने बताया कि घटना के समय उसकी शर्ट पर खून लगा था। वो घर में है, उसकी तस्दीक इसलिए उसके घर पर गए थे। शर्ट पर खून लगा है नहीं, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। ये तीनों राज के पूर्व परिचित थे और उसके साथ उठना बैठना था। ये काम पैसे के लिए तैयार होने पर किया गया या दोस्ती के लिए, ये इन्होंने नहीं बताया। इन लोगों के आने जाने और घूमने के संबंध में राज ने पैसे दिए थे। और अब अगली खबर। लॉस एंजलिस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और एप्पल स्टोर में जमकर लूटपाट शुरू हो चुकी है और कर्फ्यू भी लागू हो चुका है। दरअसल लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति ट्रंप के आव्रजन आदेशों के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक एप्पल स्टोर को लूट लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नकाबपोश लोगों को स्टोर लूटते हुए दिखाया गया है। प्रदर्शनकारी आईसीई अधिकारियों के निर्वासन अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए एक्टिव ड्यूटी मरीन तैनात
तैनात किए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात बिगड़ते ही जा रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवर्जन आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनको काबू करने के लिए एक्टिव ड्यूटी मरीन को तैनात किया गया। इस समय लॉस एंजलिस का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक एप्पल के स्टोर को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक सोमवार रात को कई नकाबपोश लोगों ने शहर में एक एप्पल स्टोर को लूट लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कई नकाबपोश लोगों को एप्पल स्टोर में घुसते और गैजेट लूटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के आते ही कई लोग स्टोर से भागते हुए दिखाई दिए। और अब अगली खबर। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कोर्ट से लगाई गुहार। लॉस एंजलिस में ट्रंप की सेना की तैनाती रोकने की उठी मांग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीति के खिलाफ पिछले 4 दिनों से लॉस एंजलिस में जारी हिंसा के बाद मंगलवार को ट्रंप के आदेश पर 709 सैनिकों के साथ 2000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिक शहर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संघीय अदालत का रुख किया। उन्होंने आपातकालीन अनुरोध दायर कर नेशनल गार्ड और मरीन सैनिकों को लॉस एंजलिस में तैनात करने के आदेश को रोकने की अपील की। कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ने अदालत में कहा कि सैनिकों का उपयोग आव्रजन कार्रवाई में करना अनुचित है और इस स्थिति और भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य को इस फैसले की कोई जानकारी नहीं दी गई और इससे कैलिफोर्निया की स्वायत्तता को ठेस पहुंची है। पिछले 4 दिनों में भारी हिंसा के चलते ट्रंप ने नौसैनिकों और अतिरिक्त नेशनल गार्ड को लॉस एंजलिस भेजने का फैसला किया। ट्रंप ने यहाँ दंगों पर सख्ती जरूरी बताई, जबकि मेयर करेन बेस और गवर्नर न्यूसम ने कहा कि यह सच्चाई के उलट है। उन्होंने ट्रंप और पर सैन्य कर्मियों को जोड़कर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने भी कहा कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। और अब अगली खबर। नागपुर में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित। केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों और लोकहितकारी निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नागपुर में विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस उपलक्ष्य में डिजिटल मीडिया प्रतियोगिता से लेकर प्रत्यक्ष संवाद और प्रदर्शनी तक कई आयोजन निर्धारित किए गए हैं। डिजिटल मीडिया प्रतियोगिता का आयोजन डिजिटल मीडिया पर कार्यरत युवाओं और एक्टिविस्टों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागी रचनात्मक रील, ब्लॉग और लघु चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 12 जून से पंजीकरण आरंभ होगा और प्रतिभागियों को 24 जून तक अपनी रचना जमा करनी होगी। इस प्रतियोगिता से जुड़ी सभी जानकारी bgpnagpur.in वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रतियोगिता के हर वर्ग में आकर्षक नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यों को प्रदर्शित करने हेतु शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। साथ ही शहर के उद्यानों, चौक चौराहों और मॉल्स में संवाद चौपाल के माध्यम से आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नागपुर महानगर का आईटी सेल है। इस आईटी सेल के माध्यम से हम देखते हैं कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू की है। बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक जीवन में काम करने वाले भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। और हम देखेंगे पुराने समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
संख्या कम रहती थी, आज हमारे सामने कैमरों की संख्या देख करके हम उसके बढ़ते हुए प्रभाव को जान सकते हैं। इसलिए डिजिटल कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर के माध्यम से ली जा रही है। तो डिजिटल कंपटीशन में 4 अलग अलग सेक्टर है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको रील बनानी है, दूसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको ब्लॉग, जिसमें आपको एक छोटी फिल्म बनानी है जो 3 से 11 मिनट की होगी, तीसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको फोटो का कोलाज बनाना है, और चौथा सेक्टर ऐसा है जहां आपको 1000 शब्द तक आपका ब्लॉग लिखना है। इस स्पर्धा में नागपुर शहर के रहने वाले कोई भी वासिंदा, चाहे वो प्रेस से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो व्यक्तिगत तौर पर भी अगर क्रिएशन करता है तो उस क्रिएशन में भाग ले सकता है। और इन चारों स्पर्धाओं के लिए पृथक पृथक आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, 5 पुरस्कार रखे गए हैं, जिसकी जानकारी आपके प्रेस नोट में एक पत्रक के माध्यम से दी गई है। नई पीढ़ी इस सरकार के बारे में क्या सोच रही है, यह भी उनके क्रिएशन के माध्यम से सामने आ सके, इस दृष्टि से यह नियोजन हमने किया है। केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्य को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा शहर के अन्य बगीचों के पास, शहर के मॉल में। इसके अलावा बस्तियों के अंदर जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं, इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की प्रदर्शनी के साथ साथ जिस स्थान पर प्रदर्शनी का नियोजन किया जाएगा, उसी स्थान पर विषय अनुरूप हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। जहां महिलाओं के विषय की प्रदर्शनी है, वहां महिलाओं की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। जहां सीनियर सिटीजन्स की और दिव्यांगों के लेकर के एग्जीबिशन है, वहां सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी को आयुष्मान भारत की लाभ दिया है, इसलिए उस पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन करके उनको उसी स्थान पर कार्ड प्रदान करना, इस दृष्टि से भी इस नियोजन के माध्यम से हम लोग करेंगे। जहां नौजवानों के एग्जीबिशन लगेंगे, वहां मुद्रा लोन से लेकर के सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंक फैकल्टी से लेकर के सब लोग बैठ करके उचित मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार का नियोजन इसमें किया गया है। इस विषय में कलेक्टर साहब से भी बात शुरू है। अगर संभव हुआ तो शासन के तौर पर जो सेतु में सुविधाएं मिलती है, जैसे डोमेसाइल सर्टिफिकेट निकालना, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालना, जो बच्चों के लिए नितांत आवश्यक होता है एडमिशन के समय में, इसलिए स्कूल खोलते समय इन सारी चीजों के एक्सप्लेन आ जाए। इसलिए कलेक्टर के माध्यम से भी प्रत्येक जोन में इस प्रकार के कार्य हो सके, जिससे जन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से भी नियोजन किया जाएगा। नागपुर शहर में चौपाल का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। चौपाल से तात्पर्य है कि लोगों की भीड़ के बीच में जाकर के मोदी जी के 11 वर्ष के बारे में चर्चा करना। अब चौपाल में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सकारात्मक ही बोलेगा, कोई अगर नकारात्मक भी बोल रहा है तो उसकी भी बात को सुनना और उसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो पोर्टल है उस पर तवज्जो देना। इस दृष्टि से इस राष्ट्र का नौजवान, इस राष्ट्र की बुजुर्ग पीढ़ी, इस राष्ट्र के व्यापारी, इस राष्ट्र की माताएं और बहनें 11 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल के बारे में अपना क्या अनुभव साझा करती है, उसको नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं उसका चित्रीकरण करके सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी चौपाल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। एक अभिनव कार्यक्रम और लिया गया है। आने वाली 21 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी, इनकी एक प्रकट मुलाकात का कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभागृह में रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निर्गुणकर जी इस पत्रकार परिषद में नितिन जी से संवाद स्थापित करेंगे और नागपुर शहर के सारे सेक्टर में काम करने वाले जो सीनियर से, जूनियर से, नए बच्चे हैं, सारे लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और नितिन जी से जो संवाद निर्गुणकर जी करेंगे उसका आनंद लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार का नियोजन किया जा रहा है। 21 तारीख को उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एवं नागपुर महानगर पालिका द्वारा किए गए समाजाभिमुख लोक हितकारी निर्णयों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इस दृष्टि से हमारे विधायकों के माध्यम से पत्रक छाप करके घर घर तक घर चलो अभियान का नियोजन भी करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया है। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, इनका बलिदान दिन है। इस बलिदान दिन पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जीवन चरित्र को जनता के बीच में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से हर बूथ पर कार्यक्रम लेने का निर्णय भी लिया गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रमों की सांगता 25 तारीख को होगी और 25 तारीख भारत का लोकतंत्र बचाओ दिन है। इस 25 तारीख से 50 वर्ष पूर्व
देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को अपने पैरों से कुचलने की चेष्टा की थी। उस समय लाखों परिवार बेघर हो गए थे, अनेक परिवार उद्ध्वस्त हो गए थे। आज भी अनेक परिवार उस क्रांति से उभर करके बाहर नहीं आए। नागपुर शहर में आपातकाल के संघर्ष में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनको जेल हुई, ऐसे सब लोगों का सत्कार किया जाएगा। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और विनय जी सहस्त्रबुद्धे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है आपातकाल को लेकर के। उनके व्याख्यान का नियोजन हमने किया है और 25 तारीख के इस कार्यक्रम के साथ इस संपूर्ण आयोजन को हम लोग सांगता प्रदान करेंगे, विश्रांति देंगे और अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह सारे आयोजन जनता के बीच में जाकर के केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित न रह करके आम जनताओं के सहयोग से आम जनता को इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग करेंगे, ऐसा हमने नियोजित किया है। इस कार्यक्रम में किस किस कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसे दी गई है उसकी यादी आपके साथ में हमने दी है। जो अलग अलग कार्यक्रमों की मैंने जानकारी दी उसकी भी विशेष रूप से किसको जिम्मेदारी दी गई है इसकी भी यादी मैंने आपको दी है। हमारी जो डिजिटल कंपटीशन है उसका स्वरूप क्या होगा, उस प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, उस पर 12 तारीख को नितिन जी चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूखे को अनाज दिया, जिनके घर नल नहीं था उनके घर तक पानी, नल से पानी पहुंचाया, जिनके घर बिजली नहीं थी उनके घर तक बिजली पहुंचाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ शौचालय नहीं था वहां शौचालय पहुंचाया। अर्थात नागरिक जीवन की आवश्यकता के लगने वाले सारे तत्वों को उनके घर तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया ही है। और जन धन के माध्यम से जो गरीबों को मिलने वाला पैसा था जिसको बिचौलिए खा जाया करते थे वो सीधा उनके पास बगैर भ्रष्टाचार के पहुंचे। ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये गरीबों के दृष्टि से बहुत बड़ी निर्णय है। एक सवाल है आपसे, अंतिम प्रश्न, कारण 2 बजे देवेंद्र जी की प्रेस शुरू होगी, आप उसमें जुड़ना चाहेंगे? महाराष्ट्र में महिला बीजेपी ने इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं वो सभी देख रहे हैं, लेकिन महिला के लिए सुरक्षा का क्या प्रावधान है? हालांकि अभी ये नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है राजनगर में, वहाँ एक बच्ची पढ़ाई कर रही थी, यशस्वी स्टैंडर्ड नाम की। 2021 में उसके साथ अन्य हुआ कॉलेज के अंदर में, गृह विभाग का वो कॉलेज है, वो बच्ची ने भी 7 अप्रैल को सुसाइड कर लिया। किसी ने कुछ मदद नहीं कर पाया। अभी तक वो लोग पकड़े भी नहीं गए, वो यूपी बिहार के लड़के हैं और कॉलेज प्रीमाइसेस में उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। अभी तक उसको न्याय मिला नहीं, इसमें क्या कहना चाहिए? किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है जिसे नारी की संवेदना, नारी का मान, नारी का सम्मान आहत होता है तो उस दृष्टि से लोग करके महाराष्ट्र की सरकार में माननीय गृह मंत्री जी सजगता से, आक्रामकता से उस पर कदम उठाते हुए कार्रवाई करते हैं। इस घटना की भी संजीदगी से जांच करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उस पर वर्तमान तक क्या हुआ इसकी जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो दोषी होगी उनको रक्षा दी जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माजी शहराध्यक्ष जेवढे आमची सभा आहे ते प्रत्येक सभेचे असं काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। आज संध्याकाळी आमची 5 वाजता अभ्यास वर्ग आहे, त्याचे प्रमुख ते आहे, त्यांच्या मुख्य भाषण आहे त्याचं आपण त्याला त्या दृष्टीने पाहू नका, कारण याच्यात अनिलजींच्या नावाने जबाबदारी नाही आहे, सुधाकरराव कोळेंच्या नावाने जबाबदारी नाही आहे, गिरीशजींच्या नावावर जबाबदारी नाही आहे, सुधाकरराव देशमुखांच्या नावावर जबाबदारी नाही आहे। म्हणजे जबाबदारी नाही दिली म्हणजे ते काम नाही करणार असं काहीच नाही आहे। तिथे कुठे माझं नाव आहे का दयाशंकरवर काय जबाबदारी आहे? तर मग इलाकों के लिए ग्रामीण के लिए आप किसानों के बीच में अगर जाने वाले हैं, हमारी जो ग्रामीण में 2 अध्यक्ष है उनके माध्यम से किसान सभा का भी आयोजन किया जाएगा और उन विषयों पर भी वहां पर चर्चा होगी। शहर में काफी समस्या है, जनता के बीच में उनके गुस्से का भी स्वागत होगा। उसकी तैयारी है, उसी दृष्टि से लोगों के बीच जा रहे हैं। ऊपर जब सिटी देता है तो खाना पक जाता है, हम उस मानसिकता से तैयार है। जो भी समाज में है उसकी जानकारी लेने के लिए ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये एक ऐसा संवाद है
इस संवाद के माध्यम से अगर किसी का गुस्सा है तो उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी और उसका निराकरण करने की दिशा में हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। इसी दृष्टि से एक मंडल में मैंने 10 की जानकारी दी है। बाल्या बोरकर जी सभा की बैठक ले रहे हैं, एक मंडल में 20 सभाएं हो रही है, अर्थात हर 5 बूथ पे हमारी सभा हो, इस प्रकार का नियोजन हम कर रहे हैं। इस दृष्टि से जब 5 बूथ तक जाएंगे तो ग्रास रूट लेवल तक भाजपा का कार्यकर्ता जाएगा, घर घर संपर्क करेगा, लोगों में जो नाराजगी है उसका निराकरण करने की दृष्टि से ही जनसंपर्क किया जाता है। जनता दरबारमध्ये अनेक असे काम असतात शासकीय जे रेंगाळत राहतात, त्यासाठी त्यांचे काम व्यवस्थित झाले पाहिजे म्हणून जनता दरबार घ्यावा लागते। आणि आपण कितीही स्वस्थ राहिलो तो आपण आपला होल बॉडी चेकअप कशासाठी करतो? एखादी जर बिमारी लपून राहिली तर ते लक्षात आली पाहिजे, तेवढाच विषय जनता दरबार म्हणजे। वो सवाल है मेरे, एक 25 जून का जो आपका प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करिए कि कैसा आपका वो करने वाले हैं आयोजन। और दूसरा आपके जो सेक्शंस है उसमें जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उल्लेख किया, उसमें जैसा शिक्षकों का ये ले रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं दिखा, क्योंकि वो भी वो इम्पोर्टेंट है। चल इसमें वो लोगों के बीच में स्थापित करने वाले जो लोग हैं वो शिक्षक हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमने सम्मेलन लिया, उसमें बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन का सम्मेलन लिया उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो वो सेक्टर हमारी योजनाओं के बारे में क्या सोचता है, शिक्षकों के सामने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, शिक्षकों ने उसका क्या मंथन किया है, उस दृष्टि से उस फैकल्टी का विचार एक मंथन के रूप में हमारे सामने आना चाहिए। इस दृष्टि से हमने वैसा नियोजन किया है, बाकी कोई बात नहीं है। 25 तारीख का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि नागपुर शहर के वो लोग जो मीसा में बंद हुए थे या जो कुछ काल के लिए बंद होकर छोड़ दिए गए थे, जिसे टीआर शब्द जो उपयोग करते हैं, इन सभी को वहां पर बुलाया जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 50 वर्ष पहले मीसा लगा था, तो बहुत सारे ऐसे परिवार है जो मीसा में अंदर गए थे वो दिवंगत हो गए, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाएगा और उनके परिवार के सभी सज्जनों को वहां पर सम्मानित किया जाएगा। हमने नागपुर शहर और जिला मिलाकर के इस कार्यक्रम को लिया है, कारण नागपुर शहर और जिला मिलाकर के 403 नाम ऐसे हैं, जो 403 नाम यहाँ है, उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। उनके एज को देखते हुए वे वहां तक पहुंचे, इसलिए उनको लाने ले जाने की व्यवस्था का भी नियोजन हमने किया है। उन सबकी ऐसी मांग थी कि एक प्रमाण पत्र हमको मिलना चाहिए कि हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शब्द दिया है कि हम उनको प्रमाण पत्र देंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से होगा। इसके अलावा इन लोकतंत्र सेनानियों के अलावा हम नौजवान पीढ़ी को उसमें बुला रहे हैं, कारण जिसका जन्म 1975 के बाद हुआ उसे तो मालूम ही नहीं कि वो कालाध्याय क्या था। मुझे अच्छे से याद है कि कवि ने कविता लिखा था, माथे पे जिसकी चोट के गहरे निशान है, झोली में जिसके फटा हुआ संविधान है, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा कौन, तो बोले हिंदुस्तान है। इसकी जानकारी कम से कम वर्तमान पीढ़ी को तो हो। संविधान हाथ में लेकर के आंदोलन करने वालों ने संविधान की कितनी सत्यानाशी की है, इसकी जानकारी हो। यह कार्यक्रम के अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसके माध्यम से हम नागपुर शहर की हमारी जो अनुसूचित जातियों की बस्तियां हैं, उन बस्तियों के बीच में भी भारत के संविधान की पायबंदी कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से हुई है, इसके पत्रक बांटेंगे और वहां भी जन जन से संवाद स्थापित करके उस बात को भी स्थापित करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, जिससे जनता को यह तो पता चले कि संविधान को असली खतरा किससे है। नागपुर महानगर का आईटी सेल है, इस आईटी सेल के माध्यम से हम देखते हैं कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू की है। बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक जीवन में काम करने वाले भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। और हम देखेंगे पुराने समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संख्या कम रहती थी, आज हमारे सामने कैमरों की संख्या देख करके हम उसके बढ़ते हुए प्रभाव को जान सकते हैं। इसलिए डिजिटल कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर के माध्यम से ली जा रही है। तो डिजिटल कंपटीशन में 4 अलग अलग सेक्टर है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको रील बनानी है, दूसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको ब्लॉग, जिसमें आपको एक छोटी फिल्म बनानी है,
जो 3 से 11 मिनट की होगी। तीसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको फोटो का कोलाज बनाना है, और चौथा सेक्टर ऐसा है जहां आपको 1000 शब्द तक आपका ब्लॉग लिखना है। इस स्पर्धा में नागपुर शहर के रहने वाले कोई भी वासिंदा, चाहे वो प्रेस से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो व्यक्तिगत तौर पर भी अगर क्रिएशन करता है तो उस क्रिएशन में भाग ले सकता है। और इन चारों स्पर्धाओं के लिए पृथक पृथक आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, 5 पुरस्कार रखे गए हैं, जिसकी जानकारी आपके प्रेस नोट में एक पत्रक के माध्यम से दी गई है। नई पीढ़ी इस सरकार के बारे में क्या सोच रही है, यह भी उनके क्रिएशन के माध्यम से सामने आ सके, इस दृष्टि से यह नियोजन हमने किया है। केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्य को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा शहर के अन्य बगीचों के पास, शहर के मॉल में। इसके अलावा बस्तियों के अंदर जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं, इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की प्रदर्शनी के साथ साथ जिस स्थान पर प्रदर्शनी का नियोजन किया जाएगा, उसी स्थान पर विषय अनुरूप हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। जहां महिलाओं के विषय की प्रदर्शनी है, वहां महिलाओं की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। जहां सीनियर सिटीजन्स की और दिव्यांगों के लेकर के एग्जीबिशन है, वहां सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी को आयुष्मान भारत की लाभ दिया है, इसलिए उस पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन करके उनको उसी स्थान पर कार्ड प्रदान करना, इस दृष्टि से भी इस नियोजन के माध्यम से हम लोग करेंगे। जहां नौजवानों के एग्जीबिशन लगेंगे, वहां मुद्रा लोन से लेकर के सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंक फैकल्टी से लेकर के सब लोग बैठ करके उचित मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार का नियोजन इसमें किया गया है। इस विषय में कलेक्टर साहब से भी बात शुरू है। अगर संभव हुआ तो शासन के तौर पर जो सेतु में सुविधाएं मिलती है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालना, जो बच्चों के लिए नितांत आवश्यक होता है एडमिशन के समय में, इसलिए स्कूल खोलते समय इन सारी चीजों की एक्सप्लेन आ जाए। इसलिए कलेक्टर के माध्यम से भी प्रत्येक जोन में इस प्रकार के कार्य हो सके, जिससे जन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से भी नियोजन किया जाएगा। नागपुर शहर में चौपाल का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। चौपाल से तात्पर्य है कि लोगों की भीड़ के बीच में जाकर के मोदी जी के 11 वर्ष के बारे में चर्चा करना। अब चौपाल में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सकारात्मक ही बोलेगा, कोई अगर नकारात्मक भी बोल रहा है तो उसकी भी बात को सुनना और उसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो पोर्टल है उस पर तवज्जो देना। इस दृष्टि से इस राष्ट्र का नौजवान, इस राष्ट्र की बुजुर्ग पीढ़ी, इस राष्ट्र के व्यापारी, इस राष्ट्र की माताएं और बहनें 11 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल के बारे में अपना ज्ञान अनुभव साझा करती है। उसको नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं उसका चित्रीकरण करके सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी चौपाल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। एक अभिनव कार्यक्रम और लिया गया है। आने वाली 21 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी, इनकी एक प्रकट मुलाकात का कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभागृह में रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निर्गुणकर जी इस पत्रकार परिषद में नितिन जी से संवाद स्थापित करेंगे और नागपुर शहर के सारे सेक्टर में काम करने वाले जो सीनियर से जूनियर से नए बच्चे हैं, सारे लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और नितिन जी से जो संवाद निर्गुणकर जी करेंगे उसका आनंद लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार का नियोजन किया जा रहा है। 21 तारीख को उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एवं नागपुर महानगर पालिका द्वारा किए गए समाजाभिमुख लोकहितकारी निर्णयों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इस दृष्टि से हमारे विधायकों के माध्यम से पत्रक छाप करके घर घर तक घर चलो अभियान का नियोजन भी करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया है। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, इनका बलिदान दिन है। इस बलिदान दिन पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जीवन चरित्र को जनता के बीच में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से हर बूथ पर कार्यक्रम लेने का निर्णय भी लिया गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रमों की सांगता 25 तारीख को होगी और 25 तारीख भारत का लोकतंत्र बचाओ दिन है। इस 25 तारीख से 50 वर्ष पूर्व देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को अपने पैरों से कुचलने की चेष्टा की थी। उस समय लाखों परिवार बेघर हो गए थे, अनेक परिवार उद्ध्वस्त हो गए थे। आज भी अनेक परिवार उस क्रांति से उभर करके बाहर नहीं आए। नागपुर शहर में आपातकाल के संघर्ष में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनको जेल हुई,
ऐसे सब लोगों का सत्कार किया जाएगा। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और विनय जी सहस्त्रबुद्धे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है आपातकाल को लेकर के। उनके व्याख्यान का नियोजन हमने किया है और 25 तारीख के इस कार्यक्रम के साथ इस संपूर्ण आयोजन को हम लोग सांगता प्रदान करेंगे, विश्रांति देंगे और अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह सारे आयोजन जनता के बीच में जाकर के केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित न रह करके आम जनताओं के सहयोग से आम जनता को इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग करेंगे, ऐसा हमने नियोजित किया है। इस कार्यक्रम में किस किस कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसे दी गई है उसकी यादी आपके साथ में हमने दी है। जो अलग अलग कार्यक्रमों की मैंने जानकारी दी उसकी भी विशिष्ट रूप से किसको जिम्मेदारी दी गई है इसकी भी यादी मैंने आपको दी है। हमारी जो डिजिटल कंपटीशन है उसका स्वरूप क्या होगा, आज की पत्रकार परिषद में आप सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों का, सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गत माह 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नागपुर शहर और संगठन की दृष्टि से नागपुर शहर जो जिले की उपमा है उसके अध्यक्ष के रूप में पक्ष के सभी ज्येष्ठ नेताओं ने मुझे नियुक्त किया, इसलिए सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके पश्चात आज पहला मौका है कि अध्यक्ष के हैसियत से आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे देश में भारत सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम की शुरुआत कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी नड्डा इनकी प्रेस के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बजे मुंबई में प्रेस लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। नागपुर शहर में 11 वर्ष के कार्यक्रमों का श्री गणेश, हम सभी के लाडले केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी 12 तारीख को इसी परिसर में प्रेस लेकर के करने वाले हैं। आज की प्रेस का मुख्य औचित्य यह है कि केंद्र कार्यकारिणी ने, महाराष्ट्र की कार्यकारिणी ने कुछ योजनाएं तय की है, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी नागपुर शहर के कार्यकारिणी की है। उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर ने जिन कार्यक्रमों को निर्धारण किया है उन कार्यक्रमों की जानकारी आपके माध्यम से नागपुर शहर की जनता तक पहुंचे और नागपुर शहर का सामान्य वर्ग भी वो भारतीय जनता पार्टी का विचार का है तो भी, और इस राष्ट्र में रहने वाला राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत है और सहानुभूति रखता है भाजपा से, वो भी इन सभी कार्यक्रमों में जुड़ सके। इस दृष्टि से आपसे हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम इस भावना के साथ में संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। जिन देशों में 40-45 वर्षों में भी कोई भारत वंश का व्यक्ति गया नहीं था, ऐसे भी देशों में जाकर के उन्होंने संबंध स्थापित किया और इन सारे संबंधों की प्रतिश्रुति कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो विश्व के तमाम राष्ट्र भारत के साथ उसके समर्थन में खड़े रहे। इससे यह इंगित हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सकारात्मक प्रयास किए थे उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे यशस्वी जिन्हें संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उन 11 वर्ष के कार्यकाल को आपके समक्ष रखने के लिए नागपुर शहर में अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम 12 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
इसी सेंटर पॉइंट होटल में होगा। दूसरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र में संगठन के 6 संगठन की दृष्टि से 20 मंडल है और प्रत्येक मंडल में 10 जनसंवाद सभा का आयोजन किया जाए, इस प्रकार का नियोजन है। 10 जनसंवाद सभा का मतलब है कि उस क्षेत्र के प्रत्येक चौराहों पर हम इस सभा को ले सके। 20 मंडल अर्थात 100 बूथ का एक मंडल होता है। एक मंडल में 10 सभाएं कम से कम हो, मैक्सिमम 20 सभाएं हो, इस प्रकार का नियोजन है। इस दृष्टि से 200 सभाएं वार्ड स्तर पर लेने का निर्णय इस माध्यम से किया गया है। इसके अलावा इन 20 मंडल में 20 सभाएं जो भारत के समृद्धि को लेकर के सभाएं हैं, उनका नियोजन किया गया है। जो छोटी सभाएं हैं जिन्हें हमने चौक सभाओं का नाम दिया है, इन सभाओं में नागपुर महानगर पालिका के द्वारा गत 11 वर्षों में किया गया काम, राज्य शासन के द्वारा 11 वर्षों में किया गया काम और केंद्र सरकार के द्वारा 11 वर्षों में किया गया काम, इसकी जानकारी दी जाएगी। जो बड़ी सभाएं होंगी उन मुख्य सभाओं में मुख्यतः केंद्र और राज्य शासन ने पिछले 11 वर्षों में जो बड़े कार्य किए उनको जनता के समक्ष में स्थापित किया जाएगा और इन बड़ी सभाओं का नाम संकल्प से सिद्धि तक यह विषय इस नाम से किया जाएगा। नागपुर शहर में अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके बीच में भी कार्य करने का निर्णय और केंद्र सरकार के विषयों को पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। नागपुर शहर में हमारे यहाँ विधि क्षेत्र में काम करने वाले जो लीगल फैकल्टी में काम करते हैं, ऐसे अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और अधिवक्ताओं के सम्मेलन में आयोजित करके भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से भारत सरकार ने देश के गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत के कानून में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए कानून के रूप में परावर्तित किया, इस पर परिसंवाद आयोजित करके उनके सामने सकारात्मक विषय रखा जाएगा। इसके अलावा नागपुर यह उपराजधानी है और यहाँ के न्यायालय में बढ़ती हुई संख्या वकीलों के होने के कारण और केसेस की बढ़ती संख्या होने के कारण बड़ी अव्यवस्था हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायालयीन परिसर में जो ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिससे जन सामान्य को और वकीली पेशे से जुड़े हुए लोगों को एक राहत महसूस हुई है, इस विषयों पर भी चर्चा करके उस विषय को 11 वर्ष के उपलब्धि के रूप में विधि क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। नागपुर शहर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CS है। और अब अगली खबर, नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में बंदियों को मिला स्वरोजगार का नया मार्ग, कौशल प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र वितरित। नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में बंद पुरुषों और महिलाओं को स्वावलंबन और पुनर्वास की दिशा में प्रेरित करने हेतु बाम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट, मल्टी कुजिन, कुकिंग और हाउसकीपिंग ऑपरेशन जैसे कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले बंदियों को आज एक भव्य समारोह में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा उनकी बनाई गई कलात्मक वस्तुओं की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन अपर पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र राज्य पुणे के मां श्री सुहास वारके और कारागृह उप महानिरीक्षक नागपुर की मां श्री स्वाति साठे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। दिनांक 22 मई 2025 से नागपुर स्थित हाउसेज ऑफ मेरी इमाकुलेट संस्था के सहयोग से 10 दिवसीय बाम्बू आर्ट और क्राफ्ट कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इसमें 60 पुरुष और 48 महिला बंदियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान बंदियों ने अत्यंत सुंदर वस्तुएं जैसे कान के झुमके, गले के हार, बांगड़ियां, स्कूटर, बाइक, स्ट्रे, कप, टेबल लैंप, मोबाइल स्टैंड, टोपलियां, शॉपीज और तैयार की, जिनकी एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और अब अगली खबर, SBI बैंक में मराठी भाषा का अपमान, शिवसेना का आक्रोश, बैंक में घुसकर अधिकारी को थप्पड़, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। मराठी भाषा के सम्मान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हो गया है। धुले के देवपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में कार्यरत बैंक मैनेजर अतुल राजेंद्र कुमार गांधी द्वारा एक महिला शिक्षिका के साथ "तुम मराठी लोग ऐसे ही होते हो" कहकर किए गए अभद्र व्यवहार और मराठी भाषा के अपमान से आक्रोशित शिवसेना के पदाधिकारी बैंक पहुंचे और बैंक अधिकारी को थप्पड़ मारकर जवाब मांगा। 4 जून को एक महिला शिक्षिका गोल्ड लोन का भुगतान करने देवपुर SBI शाखा में गई थी।
शिक्षिका के अनुसार बैंक मैनेजर अतुल गांधी ने न केवल उनका काम करने से मना कर दिया बल्कि कहा, मुझे मराठी नहीं आती, हिंदी में बोलो। तो मराठी लोग ऐसे ही होते हो, कभी भी आ जाते हो। इतना ही नहीं, शिक्षिका ने आरोप लगाया कि गांधी ने गुजराती में जोर से चिल्लाकर मराठी भाषा का अपमान किया। इस घटना से आहत शिक्षिका ने शिवसेना उद्धव गुट के पदाधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद शिवसेना के नेता धीरज पाटिल और कार्यकर्ता देवपुर SBI शाखा पहुंचे। शिवसेना पदाधिकारियों के बैंक पहुंचने से पहले ही बैंक मैनेजर अतुल गांधी शाखा छोड़कर चले गए। गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बैंक अधिकारी सदाशिव अजगे को घेरकर जवाब तलब किया और कथित तौर पर कान पकड़कर थप्पड़ मारा। उसके बाद बैंक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले में महिला शिक्षिका की शिकायत पर 2 बैंक अधिकारियों के खिलाफ देवपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मारपीट का परस्पर मामला दर्ज किया गया है। ये मेन निशानी करेंगे मशाल दिखने को 10 करते हैं आप आओ ना आपका यार चलते हैं मेल आम्हाला तो मेल दाखवा त्याचं ट्रेनिंगचं पत्र दाखवा गव्हर्नमेंटचा पगार घेते कस्टमरशी आम्हाला देणं नाही कस्टमर का लावून देतात रे आम्ही इकडे थांब कस्टमरच्या पुढे कस्टमरच्या जोडी जीव वाढतात तुम्ही कस्टमरच्या जोडी चल बाहेर चल ना लावले ना त्यांना पोलीस कंप्लेंट करतात ना कस्टमरच्या जोडी लेडीजशी असं बोलतो का मी नम्रतेनेच बोललो अरे आराम करते तुझी बघिनी आहे महाराष्ट्रामध्ये राहतो तो जन्माला आहे ना मी तसंच बोललो राहते बी काय माहिती का मी काय म्हणलो अहो तुम्ही विचारा मॅडम शिवाय नाही देऊ एज्युकेटेड लोकांशी कसं बिहेव करायचं कळत नाही का जब प्राथमिक आहे करायला लागली तर पळाला ना तो इथून बाहेर तो आज उद्या सापडेल ऐकून घ्या मला सांगतो ज्या दिवशी तो इथं बसल ना ती कॅबिन राहणार नाही तुम्हाला सांगतो कॅबिन तर तोडून आम्हाला ना हे फरक नाही पडत केसेस पासेस आणि आमची बी केस होते त्या महिलेला मारले का तुम्ही अजून एक होते ना त्या दिवशी जे सगळं झालं त्या टायमाला मी सुट्टीवर होतो मॅडम माझ्या स्वतःला जॉईन केलं वरती पण होते काय मॅनेजर एक मॅनेजर नाही एक आपला माणूस होता एक वरती सदाशिव नावाचा सदाशिव आज किती वरती ना बोलवा सदाशिवला बोलून घ्या सदाशिवला बोलवा बसा मॅडम सदाशिवला बोलवा सदाशिवला बोलवा शिपाई कोण आहे मेल आम्हाला तो मेल दाखवा त्याचं ट्रेनिंगचं पत्र दाखवा पैसे भरण्यासाठी गेले होते दिनांक 4/6/25 मध्ये तर गेल्यानंतर मी मॅनेजर सरांना भेटले. मॅनेजर सरांना सांगितलं की माझे पैसे भरून घ्या. तर कदाचित त्यांना कामाचा कंटाळा आला असेल किंवा त्यांना कुठं जायचं असेल तर त्यांनी माझ्याशी अतिशय उद्धट भाषा वापरली. त्यात त्यांना मराठी बिलकुल कळत नव्हतं. तरी पण मी त्यांच्याशी हिंदीमधून बोलले. पण नंतर त्यांनी खूपच जास्त उद्धटपणाने शिवीगाळ करायला सुरुवात केली त्यांच्या गुजराती हिंदी भाषेमधून. मग मी त्यांना म्हटलं की मराठी भाषेचा त्यांनी अपमान केला. मी जेव्हा बोलली की मला तुम्ही व्यवस्थित समजून सांगा वगैरे तर मग त्यांनी डायरेक्ट त्यांच्या गुजराती भाषेतून शिवाय दिल्या आणि म्हणे मराठा लोग हमेशा हमारे जूते के नीचे रहते हैं और कुछ समझता नहीं मुंह उठा के चले आए.
भरपूर म्हणजे वेगवेगळे शब्द असे वापरले की मी बोलू पण शकत नाही, असे शब्द वापरले माझ्यासाठी. आणि एका लेडीजशी जर की असं बोलताय आणि मी तर शिक्षित आहे, माझ्याशी असं बोलताय तर सर्वसामान्य जे अडाणी लोक आहेत त्यांच्याशी ते कसं वागत असतील. आणि हे सगळं बँकेच्या वेळेत झालं आणि त्यातल्या त्यात जेव्हा मी त्यांना बोलली की तुम्ही आता जे काही बोलले ते सगळं मला तुम्ही एकदा माझ्या मोबाईलवरती बोलून दाखवा, तर ते सर लगेच पळाले आणि म्हणे की चोरीचा अटेम्प्ट करायला आले म्हणे, हिंदीतून बोलायला लागले आणि मला धक्काबुक्की पण केली त्यांनी, अश्लील शिवीगाळ पण दिली त्यांनी. आणि त्यांच्याबरोबर अजून एक व्यक्ती होता, या माणसाचं नाव आहे अतुल गांधी आणि सदाशिव वजगे, हे दोघं जण होते. 4 जून रोजी ITI कॉलेजच्या प्राध्यापिका शिंदे मॅडम यांच्याशी स्टेट बँक शाखेच्या देवपूर शाखेच्या कार्यालयामध्ये जो इन्सिडन्स घडला तो अत्यंत दुर्दैवी असा होता. या मॅडम त्या ठिकाणी पैसे जमा करायला गेलेल्या असताना तिथल्या बँक मॅनेजरने उशिरा का आल्या म्हणून त्यांच्याशी वादविवाद केले. त्या ठिकाणी तुम मराठी लोक हमारे जितो के नीचे रहते हो, तुम ऐसे ही हो वैसे हो, अशा पद्धतीने हिंदीमध्ये आवाज पद्धतीने त्याने मराठी भाषेचा आणि या मॅडमचा त्या ठिकाणी मराठी असल्यामुळे त्या ठिकाणी अपमान केला. या गोष्टीचा राग घेऊन मॅडमने त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला की या ठिकाणी मी पैसे जमा करायला आलेले आहे, पण त्या बँक मॅनेजरने मॅडमचं कुठलंही ऐकून नाही घेतलं आणि त्यांच्याशी अरेरावी करून उज्जत त्या ठिकाणी घातली. या संदर्भामध्ये मॅडमने त्यांना भरपूर समजवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या मॅनेजरने काही ऐकून घेतलं नाही. शेवटी या मॅडमने देवपूर पोलीस स्टेशन गाठल्यानंतर या ठिकाणी कंप्लेंट त्यांच्या विरोधामध्ये नोंदवली. तो मॅनेजर या ठिकाणी मॅडमची माफी मागायला आला की आमच्याकडनं यापुढे असा प्रकार होणार नाही. त्या ठिकाणी मॅडमची माफी मागून घेतली आणि मॅडमला त्यांनी गोड बोलून या ठिकाणाहून रवाना केलं, पण त्यांनी मॅडमच्या विरोधामध्ये फिर्याद या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेली होती, जी अत्यंत चुकीची होती. म्हणजे एकीकडे मराठी माणूस त्या बँकेचा ग्राहक असताना त्या मराठी माणसाच्या आपल्याच ग्राहकाबद्दल त्या ठिकाणी आवारशी शब्दामध्ये त्या ठिकाणी बोलायचं आणि माजोरडापणा त्या ठिकाणी दाखवायचं हे अत्यंत चुकीचं आहे. संपूर्ण भारतामध्ये SBIचे कर्मचारी अशा पद्धतीने आरेरावी करतात. या SBIच्या कर्मचाऱ्यांवरती अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीचे मीम्स तुम्ही इंस्टाग्रामला बघू शकतात, फेसबुकला बघू शकता, त्यांच्यावरती त्या पद्धतीचे व्हिडिओ त्या ठिकाणी बनवले जात आहेत. यांच्या युनियनचा त्या ठिकाणी गर्व आहे. या संदर्भामध्ये मॅडमने या धुळे शहराचे माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांच्याकडे तक्रार केल्यावर अनिल अण्णा गोटेंनी जिल्हाप्रमुख अतुल भाऊ सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी आणि संपूर्ण शिवसैनिकांना आदेश दिले त्या ठिकाणी की तुम्ही त्या SBIच्या मॅनेजरला जाऊन त्या ठिकाणी समजावा. आणि एका मराठी स्त्रीची जी एक प्राध्यापिका आहे, एका वेल एज्युकेटेड संस्थेमध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन ITI त्यामध्ये त्या प्राध्यापिका आहेत आणि त्या मॅडमची त्या ठिकाणी माफी मागायला लावा. त्या इन्सिडन्स करता आम्ही देवपूर शाखेमध्ये सकाळी 11 वाजता गेलो. संबंधित मॅनेजर हा दुसऱ्या ठिकाणी ट्रेनिंगला गेल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि जो लोन ऑफिसर होता त्या लोन ऑफिसर अजगेने देखील या मॅडमशी अरेरावी केलेली होती. आम्ही त्याला बोलवलं, त्याने परत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांशी त्या ठिकाणी वादविवाद घातला. वादविवाद घातल्यानंतर तो माफी मागायला तयार नव्हता आणि त्या प्रकारामधनं त्याने परत त्याचा माजोरडेपणा त्या ठिकाणी दाखवला. त्या प्रकारामधून त्या ठिकाणी वाद निर्माण झाला आणि आम्ही लागलीच मॅडमला घेऊन या ठिकाणी देवपूर पोलीस स्टेशनला आलो. सकाळी 12 पासून आत्ता सायंकाळचे 6 वाजलेले, तोपर्यंत संपूर्ण कायदेशीर प्रोसिजर या ठिकाणी केलेली आहे. या ठिकाणी मी संपूर्ण बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की तुमचं आणि आमचं या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं वैर नाही. SBIचे ग्राहक हे महाराष्ट्रामध्ये सर्वच्या सर्व मराठी बांधव आहेत आणि त्या ग्राहकांवरती तुमची बँक चालते. या कर्मचाऱ्यांचे पगार त्या ठिकाणी या ग्राहकांवरती अवलंबून असतात. ग्राहकांनी त्या ठिकाणी ठेवी जमा केल्या नाही, ग्राहकांनी त्यांचे फंड जमा केले नाही, यांना व्याज त्या ठिकाणी भेटणार नाही आणि गव्हर्नमेंट यांचं पेमेंट त्या ठिकाणी करणार नाही. पण हे अत्यंत माजुरडे असे झालेले आहेत. त्यांच्या युनियनचा ते धाक दाखवतात आणि अत्यंत घाणेरड्या प्रकाराने त्यांनी एका महिलेला या ठिकाणी टॉर्चर केलेलं आहे. हा संपूर्ण प्रकार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आम्ही पक्ष चिन्ह दाखवलेलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये SBIच्या विरोधामध्ये उद्यापासून या ठिकाणी आंदोलनं ठिकठिकाणी त्या ठिकाणी सुरू होणार आहेत आणि यापुढील संपूर्ण कायदेशीर कारवाईला या ठिकाणी आम्ही पदाधिकारी असो किंवा मॅडम असेल, आम्ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरं जायला या ठिकाणी तयार आहोत. और अब अगली खबर, बुल्ढाना महामार्ग पर अज्ञात कार की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और एम्बुलेंस नहीं पहुंची। निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। जालना जिले के भोकरदन तालुका स्थित विजोरा गांव के पास सोमवार की शाम को एक धक्कादायक सड़क दुर्घटना घटी। शाम करीब 5 बजे अजंता से बुल्ढाना की ओर जा रहे एक दुचाकी सवार युवक को तेज रफ्तार अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अजंता से बुल्ढाना
की ओर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने अचानक उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय किसानों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद कोई एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। घायल युवक की हालत नाजुक होती देख ग्रामीणों ने निजी वाहन से उसे बुल्ढाना के अस्पताल में भर्ती कराया है। कुठले तुम्ही दवाखान्यात जाऊ त्या पहिले तेच माणसं काय झालं मला ठोकलं गाडीवाला ते कळलं नाही आहे ना तुम्हाला नाही तो पळून गेला यांनी तर मला समोरच्या गाडीवर म्हटलं तो ठोकते ठोकलं मी माहिती गाडी नंबर सांगले का गाडी ठोकली गाडी नंबर सांगले ऍक्सिडेंट झाला ते कोण टाकला दवाखान्यात चालवलं त्याला पब्लिक जाऊ दे भैया जाऊ दे और अब अगली खबर। ऑपरेशन थंडर के तहत अंबाजरी में तड़के 3 बजे छापा, अवैध हुक्का पार्लर का भांडाफोड़, संचालक पर कार्रवाई। महाराष्ट्र में हुक्का पार्लर पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद अंबाजरी क्षेत्र के निम्बस लाउंज में अवैध रूप से हुक्का परोसे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नागपुर पुलिस की विशेष मुहिम ऑपरेशन थंडर के तहत एसीपी सुनीता मेश्राम के नेतृत्व में आज तड़के 3 बजे छापेमारी की गई, जिसमें अवैध हुक्का पार्लर संचालित होते हुए पकड़ा गया। पुलिस की जानकारी के अनुसार लाउंज दरवाजे भीतर से बंद थे ताकि किसी को शक न हो और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। जब टीम ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर कई युवा हुक्का पीते हुए पाए गए। ये कार्रवाई न केवल प्रतिबंध के उल्लंघन का मामला है, बल्कि युवाओं के स्वास्थ्य और कानूनी व्यवस्था से भी खिलवाड़ है। नियमों का उल्लंघन करने और प्रतिबंध के बावजूद हुक्का परोसने के आरोप में लाउंज संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने लाउंज
से हुक्के, फ्लेवर और अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। बरं आहे ना, त्यांच्या दोघांच्या पक्षासाठी चांगली गोष्ट आहे. जर महाराष्ट्राचं किती हित चांगलं होईल, काय साध्य होईल आणि ते मुद्द्यावर एकत्र होत आहे का राजकारणासाठी एकत्र होत आहे हा विषय आहे ना. मुद्द्यासाठी एकत्र झाले असते तर आम्ही काही बोललो असतो. आता ते राजकारणासाठी मुंबई महानगरपालिकेतून जाऊ नये म्हणजे मुंबईची सत्ता जाऊ नये याच्यासाठी एकत्र होत आहे. तर ते कुठले मुद्दे घेऊन एकत्र होत आहे ते खरं तर आलं पाहिजे. मुद्द्यावर एकत्रीकरण होते, फक्त मुंबई आपल्याला घ्यायची आहे याच्यासाठी एकत्रीकरण होते ते काही निश्चित नाही आहे. नाही काही सांगता येत नाही वेळेवर काय होतं आहे का. ह्या व्यक्तिगत ज्या निवडणुका आहे नगरसेवकाच्या, ह्या ज्या निवडणुका ह्या पक्षाच्या बलावर होतच नाही, ह्या त्याच्या व्यक्तिगत कार्यशैलीवरच होते. त्याच्यामुळं पक्षाची एकाच घरातले दोघं उभे राहतात. एक मनसेकडून राहीन, एक शिवसेनेकडून, एखादा त्याच्याच घरातली सोनगिन भाजपकडून राहील. त्याच्यानं वेळेवर कशा उमेदवार येतात त्याच्यावर खूप अवलंबून असतं ना. ह्या लोकसभा आणि विधानसभेसारखं पक्षीय ताकदीवर ह्या निवडणुका होत नाही. सहसा व्यक्तिगत त्याची काय कॅपॅसिटी आहे, त्याची काय ओळख आहे. कारण जितकं तुम्ही खाली निवडणुका जाण तेवढ्या ते व्यक्तिगत पातळीवर जातं. जेवढं वरते जाण तेव्हा ते पक्षीय बलावर जातं. विचारून सांगतो मी तुम्हाला. एखादं चांगलं ज्योतिष्य पाहतो, दोघांचा हातही पाहा लागल मग सांगू. और इसी के साथ अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ. नमस्कार. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर.